फ्रेंड्स, सो हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ सरफेस एक्ट 2002। सो ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा बोथ इन CIB एंड JIB, दैट इज़ इन रिटेल एंड ऑल्सो इन दैट इज़ द JIB legal paper, right? So this is very important. From the Surface Act only, in JIB exam you will definitely get something like 3 to 4 questions of case study, right? And also DRT. So in the next video we are also going to discuss the DRT questions. So in retail also this Surface Act 5 to 6 questions will come from this only. So this is very important. So we are just discussing with the quizzes, right? So for these quizzes we are making one these quizzes are arranged in our paid group, that is the Telegram group, right? And link will be given in the channel description or this video description. You can join the Telegram group and you can easily attempt the quizzes more and more whenever you are compatible, right? So let's start the quiz. First question हमारा है, Surface Act does not concern which of the following aspect, right? First option is securitization of financial assets, reconstruction of assets, authorizations to enforce without the intervention of the court, setting up central registry, none of the above. Does not concern which of the following aspect. So securitization of financial aspect, so it includes authorized to enforce without intervention of the court. Surface Act is due to that we don't need to go to the court. Without intervention of the court, the authority can go or move forward to do the process of to sell the security, right? And the setting of central registry, there will be a central registry for this purpose, right? Securitization of financial assets, जो भी asset रहेगा उसको securitize करने के लिए, that is for Surface Act. और कौन सा वाला नहीं है, that is reconstruction of asset. This part is not included, right? So this is the correct answer as per the questions. This is written which is does not concern. So next question हमारा है, which of the following cases the constitutional validity of Surface Act 2002 was questioned before Supreme Court? एक केस ऐसा हुआ था जिसमें जो वैलिडिटी ऑफ सरफेस एक्ट थी 2002, सरफेस एक्ट 2002 में इसको कोर्ट में इसके बाद इसको अगेंस्ट में क्वेश्चन किया गया था इन सुप्रीम कोर्ट. कौन सा केसेस है? फर्स्ट ऑप्शन है मैनचेस्टर केमिकल वर्सेस ICICI बैंक, मैनचेस्टर केमिकल वर्सेस यूनियन बैंक, मांड्या केमिकल्स वर्सेस यूनियन इंडिया DC, मांड्या केमिकल्स वर्सेस ICICI बैंक, राइट? सो द आंसर इज मांड्या केमिकल्स वर्सेस यूनियन of India, right? So this is the correct answer. So next है हमारा, in case of Madhya Chemicals cases in relation to Surface Act 2002, which part was declared as invalid by Supreme Court? इसमें कौन सा वाला पार्ट को invalid डिक्लेयर किया गया था in that particular case? इसमें ये किया गया था, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ए प्री कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ 75% ऑफ अमाउंट बाय द बोरोअर बिफोर गोइंग टू DRT. इसमें एक प्री कंडीशन था कि बिफोर जो रिजल्ट ये है टीम है वहाँ पर जाने से पहले, DRT में जाने से पहले उसको डिपॉजिट करना था 75% ऑफ द टोटल अमाउंट बाय द बोरोअर, राइट? और नेक्स्ट हमारा ए भी हमारा ऑप्शन सेम ही है. सो नेक्स्ट है प्री कंडीशंस ऑफ डिपॉजिट 75% ऑफ द amount by the borrower if the bank sells the immovable property. अगर बैंक immovable property को सेल कर देता है then by the borrower 75% of the amount देना पड़ेगा. The conditions of the deposit 75% of the amount by the borrower after DRT. अगर DRT डिसीजन के बाद तो एक्चुअली कौन सा वाला इनवैलिड पॉइंट था? जो पॉइंट था एक्चुअली ये था, वहाँ पर 75% of the amount by the borrower before going to DRT, right? So next question is question number 4. So these are very important, just try to remember. So under the provisions of Surface Act 2002, where a transaction of securitization is registered, कहाँ पर
आपका जो ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन विल बी रजिस्टर। फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, रजिस्टर ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर इज register of central registry. Here the provision transaction of securitization will be registered, right? So question number 5. Question number 5 is, under the provision of SARFAESI Act, under the provision of SARFAESI Act, a charge on movable property in favor of secured without delivery possessions to the creditor is called। जो SARFAESI एक्ट के अकॉर्डिंगली मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जिसको विदाउट डिलीवरिंग ऑफ पोजेसन टू द क्रेडिटर को पोजेसन नहीं देकर एक मूवेबल प्रॉपर्टी हमें पता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो होता है हमें क्या उसको बोलते हैं, हाइपोथिकेशन, राइट। और इमूवेबल होगा तो आपका हो जाएगा मॉर्टगेज। असाइनमेंट जैसे LIC रहा पॉलिसी, ये आपका हमारा जो PPB एग्जाम में आज 4 मार्क मैचिंग का आया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इन लीगल ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लेस क्या होता है, प्लेस हमारा जो हमारा गोल्ड होता है वो हमारा प्लेस रहता है, राइट। और आज एक क्वेश्चन आया था जिसको हम देख रहे हैं कि प्लेस वर्सेस इम्प्लाइड प्लेस, इसमें बीच में डिफरेंस क्या है। आपका जो नॉर्मल प्लेस है और इम्प्लाइड प्लेस में कौन सा डिफरेंस है, राइट। ये जो नॉर्मल प्लेस है इस केस में जो लेंडर रहेगा दैट इज बैंक, वो जो आपका सिक्योरिटी को आइदर रिटर्न कर, अगर कस्टमर जो बेनिफिशियरी है वो अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, राइट, उस केस में बैंक क्या कर सकता है ना, नॉर्मल प्लेस में रिटर्न कर सकता है और सेल कर सकता है। पर इम्प्लाइड प्लेस में बैंक रिटर्न नहीं कर सकते, ओनली बैंक हैज़ द राइट टू सेल, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन द PPB एग्जाम, सो रिमेंबर दिस, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा लिन। जब हमारा कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन होता है एंड कुछ होता है उस केस में बैंक के पास ये बार पावर रहता है, बैंक कैन मेक इट लिन सो दैट कस्टमर जो होता है ना उस अमाउंट, जो पर्टिकुलर अमाउंट अगर उसके अकाउंट में 1 लाख है और उसका 10,000 का लिन लगा है, कस्टमर कैन नॉट डिडक्ट दिस और कैन नॉट डू द ट्रांजेक्शन फॉर दिस 10,000 विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक, राइट। सो एक लिन मार्क होता है। सो नेक्स्ट हमारा जो है हाइपोथिकेशन। अभी हमारा हाइपोथिकेशन जो है मूवेबल केस में जैसे स्टॉक्स होता है और ये होम लोन में होता है, राइट। सो उस केस में हम स्टॉक्स लेते हैं और व्हीकल के केस में ये मूवेबल है तो यहाँ पर भी ये हाइपोथिकेट होगा, तो यहाँ पर था हमारा मूवेबल, सो उसके हिसाब से आंसर है हाइपोथिकेशन। सो नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 6। इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन द नॉन लिक्विड फाइनेंशियल एसेट आर कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ। जो नॉन लिक्विड NPA होगा वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कैसे सेल किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में सेल किया जाता है। फर्स्ट है शेयर्स, डिवेंचर्स, पासवर्ड सर्टिफिकेट्स, सिक्योरिटी रेसिप्ट्स। सो जो हमारा NPA होगा नॉन लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, उसको हम सिक्योरिटी रेसिप्ट्स में कन्वर्ट करेंगे इनटू मार्केटिंग सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रेसिप्ट्स सो दैट वी कैन सेल, राइट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। सो नेक्स्ट और हमारा एक ऑप्शन है बॉन्ड नहीं है, सो दिस इज वन सिक्योरिटी रेसिप्ट्स, रिमेंबर दिस। what norms has to be followed, what norms has to be followed by a securitization company regarding own fund, what norms has to be followed by a securitization company regarding own fund and the acquired financial assets, that is own fund as percentage of acquired assets, कितने परसेंटेज का, what norm has to be followed as percentage of the acquired finances, what percentage, first 20%, 15%, 12.5%, these are the options, right, 10 and 5, correct answer is 15%, you can refer this, 15% of the acquired assets, right। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट द टाइम ऑफ द टेक ओवर,
At the time of takeover of bad loans from 3 banks, it is found that these banks have filed suit in different years. At the time of takeover, the bad loans from 3 banks, it is found that these banks have filed suits in different years. Securitizations company wants to get these cases in one DRT, which can be permitted by. जब हमारे बैड लोन को from three banks, it is found that these banks have filed suits in different DRTs. Securitization company wants to get these cases in one DRT, which can be permitted by. मतलब क्या होता है ना, इस ये वाला ऐसे केसेस हुआ, एक बैड लोन था, ये तीनों बैंक्स में था, राइट, कंसोर्टियम क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, जो तीनों बैंक थे वो 3 डिफरेंट DRT में फाइल किए हैं सुइट। तो इस केस में जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, जो इसको सिक्योरिटाइज मतलब जो इसको सेटल करेगा, वो चाहता है कि इसको एक DRT के अंडर लाने के लिए। तो उस केस में जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है वो किस से परमिशन लगेगा कि इसको एक के अंडर लाने के लिए? फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, RBI, DRAT, ड्रेसल दैट इज DRAT से परमिशन लाएगा, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा, तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि DRT क्या होता है। जो हम अभी देखे DRAT, ये क्या होता है? DRT का फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, जो कि एस्टेब्लिश हुआ है टू फैसिलिटेट द डेब्ट रिकवरी इन्वॉल्विंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद देयर कस्टमर्स। ये जो डेब्ट रिकवरी के लिए हेल्प करेगा, राइट, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। एंड जो भी DRAT क्या होता है, दैट इज डेब्ट रिकवरी एपेलेट, रिमेंबर दिस, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स। ये वाला आपका फुल फॉर्म मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, राइट। जो भी कुछ केसेस DRT पास करते हैं, अगर कस्टमर को वो सेटिस्फाई नहीं लगा, वो क्या कर सकता है ना, DRAT में फाइल कर सकता है, राइट। और ये वाला जो DRT कैन टेक केसेस फ्रॉम बैंक फॉर डिस्प्यूट लोन्स अबव 10 lakhs ओनली, till 10 lakhs that is securitization law will be applied, and more than the 10 lakhs it will be taken by the DRT, that is debt recovery tribunals. Remember this is very important, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, ये वाला परमिशन लेने के लिए उसको DRAT से परमिशन लेना होगा, डेब्ट रिकवरी अपलेट ट्रिब्यूनल्स, राइट। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं when the securitization company fails to realize the securitized assets, the qualified institutional buyer holds dash percentage of total value of the security receipts can force the securitization company for particular decision. कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए उस टाइम जो क्वालिफाइड इंश्योरेंस बायर है वो फोर्स कर सकते हैं। अब टोटल -% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, दैट इज 75% ऑफ टोटल वैल्यू। जिसके पास 75% ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स होगा, वो क्या कर सकता है ना, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को फोर्स कर सकता है कुछ भी एक डिसीजन लेने के लिए, राइट। जिस टाइम आपका सिक्योरिटाइजेशन कंपनी फेल्स टू रियलाइज द सिक्योरिटाइज एसेट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिमेंबर दिस इज द आंसर इज 75%। नेक्स्ट है हमारा, ये हम जो क्विज़ के थ्रू में कर सकते हैं। आप ये वाला वीडियोज़ के साथ हम कुछ डिस्कस करेंगे, एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है, एंड आप क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये वाला क्विज़ एग्ज़ाम से पहले भी हम प्रोवाइड कर लेंगे, सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज विद इन सम सेकेंड्स। अगर आप पहले इसको 45 सेकेंड्स पे कर रहे हैं और 1 मिनट पे कर रहे हैं, तो उसके बाद हम आपके हिसाब से ही इसको 10 सेकेंड का टाइम दे सकते हैं, सो दैट आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं विद इन 1 to 2 minutes, राइट। सो आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर वीडियोज लाइक दैट। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सो दैट यू कैन अवेल द फैसिलिटीज इन ए बेटर वे एंड टू अटेंड द क्विज। एंड क्विज के लिए हमारा एक पेड ग्रुप है, स्पेशली ग्रुप है, जहाँ पर विथ नॉमिनल प्राइस यू कैन पे दैट एंड यू कैन प्रैक्टिस द क्विज, राइट, टिल द लास्ट डेट ऑफ द एग्जाम। सो नेक्स्ट है, सो दैट ये वाला जो वीडियोज़ है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट इट विल हेल्प देम
टू क्लियर द एग्ज़ाम्स इन वन गो। और जिनका PPB क्लियर हो गया है दिस टाइम और 45 एबव है, राइट, और 45 है, उनके पास अभी भी चांसेस है कि आप दोनों के 50-50 ले आइए मोर देन एंड क्लियर इन वन गो। अदरवाइज आपका ये वाला कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, राइट। और जिनका 44 मतलब 45 से कम है, वो भी इस अटेम्प्ट में ट्राई करिए कि आपका अकाउंट्स एंड जो लीगल है वो क्लियर हो जाए, सो दैट इट विल हेल्प यू टू क्लियर, बिकॉज PPB इतना भी ये नहीं है। इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट यू कैन क्लियर, राइट। सो सी द वीडियो टिल द एंड सो दैट इट विल हेल्प यू मोर एंड मोर, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो है, under the provision of SARFAESI Act 2002, which of the following is not part of the financial asset reconstruction? जो SARFAESI एक्ट के अंदर कौन सा वाला जो है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन में नहीं जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट, रीशेड्यूलमेंट ऑफ द ड्यूज पेबल बाय द बोरोवर, टेकिंग पोजीशन ऑफ द एसेट्स, नॉन ऑफ द अबव। सो इसमें से कोई भी आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दीज आर द ऑप्शंस। डायरेक्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड अलाउड टू ए सिक्योरिटाइजेशन कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एसेट? जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को कितना टाइम मिलता है, दैट मैक्सिमम टाइम कितना मिलता है फॉर रिकवरी ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड फाइनेंशियल एसेट? जो आपका रिकंस्ट्रक्टेड फाइनेंशियल एसेट होगा उसको रिकवरी करने के लिए जो भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है उसको कितना टाइम मिला होगा? 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, क्या द ऑप्शंस? सो करेक्ट आंसर इज उनको 5 years का टाइम मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है, under the provisions of SARFAESI Act 2002, what is meant by enforcement of security interest? Under the provision of SARFAESI Act 2002, what is meant by enforcement of security interest? जो enforcement of security interest, इसका मीनिंग क्या है? इसका फर्स्ट, सेल ऑफ एसेट ऑफ द बोरोइंग पार्टी बाय द बैंक, जो बोरोइंग पार्टी का जो सेल एसेट है वो बैंक सेल कर देगा। और नेक्स्ट है सेल ऑफ द चार्ज एसेट बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर थ्रू DRT, दिस इज नॉट गेटिंग बैंक चार्ज रजिस्टर्ड विथ सेंट्रल रजिस्ट्री, नो। सो सेल ऑफ चार्ज एसेट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर विथ और विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। आपका SARFAESI का मेन पॉइंट तो वही है कि यहाँ पर आपका विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन द थिंग्स विल बी डन, दैट इज सेल ऑफ चार्ज एसेट बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सो दिस इज द राइट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, an asset is sold by the secured creditor, what would be the order for the appropriate process? जो सोल्ड करेगा बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्या कौन सा प्रोसेस होना चाहिए फॉर द अप्रोप्रिएट प्रोसेस? नीचे से आता है, राइट। फर्स्ट टुवर्ड्स कॉस्ट चार्ज इनिशियल टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ सिक्योरिटीज, फर्स्ट टुवर्ड्स कॉस्ट, चार्ज इंसिडेंटल टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ सिक्योरिटीज। जो प्रिजर्वेशन चार्ज है उसी को सिक्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए उसके लिए कुछ इंसिडेंटल चार्ज रहता है, देन उसी को लेना है। फर्स्ट टुवर्ड्स कॉस्ट ड्यूज फॉर द सिक्योर्ड क्रेडिटर, फर्स्ट टुवर्ड्स कॉस्ट ड्यूज टू द सिक्योर्ड ऑन प्रोरेटेड बेसिस। सेकेंडली इफ देयर इज सरप्लस टुवर्ड्स अदर पर्सन्स एंटाइल्ड टू द पर्सन्स। सो यहाँ पर आपका जो हमारा फर्स्ट है इसको अपना प्रिजर्वेशन करके रखा था ना सिक्योरिटी को, तो उसके अलावा जो चार्ज होगा वो वाला को हमें लेना है, राइट। सो ये वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन इट्स अ करेक्ट आंसर, राइट। ये सब बाद में, पहले हमें प्रिजर्व किए हैं ना सिक्योरिटी को, उसी को तो उसी के लिए पैसा लेना है। सो नेक्स्ट है, इफ आफ्टर द सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट द ड्यूज ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर आर नॉट पेड फुली,
What option does the secured creditor have? He has to write up the same. He can file a suit in the civil court. He can file a suit in the DRT. So he has to write up the same. No, he can write a suit in civil court. No, he can in DRT debt redressal tribunal. No. So आंसर कौन सा होगा? ये इंडिविजुअली सही नहीं है. He can file a suit in DRT, right? The answer is A, B, C. ये आपका ऐसे ऐसे हो सकता है, राइट? B and C. वो कोर्ट में एक सूट फाइल कर सकता है. He can file a suit in DRT. अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को अपना पैसा फुल्ली नहीं मिला है तो क्या करेगा ना, कोर्ट और DRT में एड्रेस करेगा, वहाँ पर एक सूट फाइल करेगा अगर उनको नहीं फुल्ली उनका पेमेंट नहीं हुआ. एंड DRT में अगर कुछ नहीं हो सका, मतलब जो भी डिसीजन है अगर उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर को अच्छा नहीं लगा कि जो कस्टमर है उनको अच्छा नहीं लगा या हमारा जो लेंडर है उनको अच्छा नहीं लगा, वो क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पर DRAT में जाएंगे, राइट? और सरप्राइज में हम ये करते हैं कि नॉर्मली जो हमारा कोर्ट है उसको हम राइट, नो विथ और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. और यहाँ पर साइट में सिविल कोर्ट में फाइल करना है, राइट? दिस राइट अप इज नो दिस एंड दिस, फर्स्ट सिविल एंड देन DRT. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th, द फाइनल क्वेश्चन. What period of time is given to the borrower as a notice before sale of the secured asset? जो भी एसेट दिया होगा डिफॉल्टर के केसेस में, तो उस केस में उसको सेल, जो सरफेस एक्ट के अंदर हम सेल करेंगे, सेल से पहले हम उनको एक टाइम पीरियड से का नोटिस देंगे. कितना डेज का? 30 डेज. द करेक्ट आंसर इज 30 डेज. हम 30 डेज का नोटिस देंगे कि आपको 30 डेज के बाद आपका जो है, जैसे कि हम 1 तारीख को नोटिस दिए तो आपका 30 डेज हो गया 30, तो आपका 31st को हम ये वाला वो सेल हो जाएगा. अगर आप कुछ कर सकते हैं देन डू द थिंग्स इन बिटवीन देम. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट SARFAESI एक्ट, राइट? सो दैट इज important both for JIB and CIB. For JIB that is a legal paper, and in CIB that is for retail paper, and in both 4 to 5 to marks will count must, right? So like it, share and subscribe the channel and click the bell icon. Nowadays we are going to upload more some revised and very important topics with respect to the CIB and JIB exams, so you will get the early notifications, right? And you can also share with your friends and tell your friends, share with your friends and subscribe the channel, so that we'll share more and more contents which will help you in a better way. Thanks for watching our videos. Thank you.